Namaskar. On behalf of Indian Council for Cultural Relations, I welcome you all to the second day of the festival called Heritage. Today, and Ustad Sabri Khan will present some of his disciples. We are very grateful to Dr. Sumati Mutatkar, an eminent musicologist who is going to coordinate today's evening program. I will now request Dr. Sumati Mutatkar to come on the stage and take the mic and the stage and start this evening's program. Welcome to Dr. Sumati Mutatkar. मङ्गलं श्रीगणेशाय मङ्गलं श्रीगणेशाय मङ्गलं जगदात्मने मङ्गलं श्री शारदायै सद्गुरुभ्यो स्तु मङ्गलम्. May the divinities bless us with success and the auspicious. Now we begin our program this evening. This evening, under the series The Heritage, we are going to have some glimpses about the great and unique instrument sarangi, its heritage, and the great Ustad Sabri Khan Sahib and his lifelong pursuit and his contribution to Indian music, to Hindustani music in particular. To begin with, I would like to say that the sarangi is one of the oldest instruments of Indian music. Its references start with the 13th century and also from the 11th century, but in order to be included in the codified musicological works, one can very well imagine that certainly it must have been in vogue earlier, at least for a few centuries. So, sarangi is that instrument. One of the veenas described in the musicological works is Pinaki veena. Pinaka itself means a bow or dhanush. Pinaki veena is described as having a shape of somewhat like the bow, and it was a bowed instrument, and its bow was also almost like the present day bow of the sarangi. Now about the heritage, I would like to say that this great instrument has been played for long in various environments, in the folk and in the devotional environment also it had its place, but in the sophisticated court environment also it has been
in great vogue from the Mughal period and before the Mughal period, and in somewhat it was an instrument for accompaniment, but it had its eminent features also for a vocal style of presentation of music on the instrument. A great feature of the sarangi is that it is nearest to the human voice. It can be said that sarangi virtually sings, and so it becomes a more living personality, and it has also the capacity to produce all the nuances and all the graces and all other movements of the human voice. So also it is a fully developed and fully capable instrument, and its sweet, delighting sound has been extolled by the fancy of one poet. He has said, ये सारंगी नहीं है, ये तो सौरंगी है. यानी its name has also been used कि this is not sarangi. Virtually, veritably, it is saurangi, means it is capable of producing innumerable nuances and shades and grades of oral beauty. So this is the effect the sarangi can produce on the human mind. I think I would like to request Ustad Sabri Khan Sahib to come over, and then we can have a dialogue about his heritage, his own training, and also his lifelong pursuit and his lifelong contribution, and what all he has done. He has been training several people in several disciplines. So, Khan Sahib, आइए. आइए सब. So here is Ustad Sabri Khan Sahib, and where is his great sarangi? सारंगी का दर्शन कराइए पहले. जी जी. So this is the great sarangi, and this is Ustad Sabri Khan. First, I would like to ask Khan Sahib जी. about your heritage. You belong to the 6th generation, and your parampara is Seniya Parampara direct link with the Seniya Parampara. Yeah. So, about your, I think you should consider yourself very fortunate that you belong to such a great tradition. या बड़े जी. खुशकिस्मत मैं आपको लगता है ना? बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि सैनिया घराने में जी हाँ. मैं पैदा हुआ और सीखा मैंने उसी घराने के मेरे बुजुर्ग ने. माय ग्रैंडफादर उस्ताद हाजी मोहम्मद खान, माय फादर उस्ताद छज्जू खान. You learnt under them. Under them, yeah. And you also learnt under? Yeah, Lagdan Khasa, Ustad Lagdan Khan. Your uncle. Yeah, my uncle. Now one would like to know, when did you start learning the sarangi, at what age? And how were you attracted to sarangi? Yeah. I started sarangi when I was 7 years old. 7 years. At the tender age of 7, Yeah. you started learning. Yeah. But you were not forced to learn sarangi. You had a liking for it. Yeah. आपको पसंद अपनी थी. Yeah. कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था ना. No. But you out कोई of love. जबरदस्ती नहीं. So, at the age of 7, you started learning. One would like to know, what were you taught first? सारंगी सीखने में पहले तो आपको सारंगी की कैसे बैठना, सारंगी को कैसे पकड़ना, और फिर बहू को कैसे, यही बताया ना
जी। तो ये सिर्फ बताइए आप कैसे। So I will show you first Yes, sarangi. yes, you must. वो सारंगी लाना। And in the meanwhile, a little about the structure of sarangi. I remember once you were saying that this is somewhat like a human form. There is a head and mouth, and then there is a chest, and Yeah. then there is a stomach or something. Is it like that? This is face. This is face and head, chest, and stomach. And the sarangi has no frets? पर्दे नहीं है इसमें? नहीं, no. हम्म? चलिए अब इसमें पर्दे- which is the पर्दे old होते हैं। sarangi on which you started learning? ये अब तो बहुत पुरानी हो गई है। जी हाँ, बहुत छोटी, क्योंकि वाह। मैं बहुत छोटा जब था तो फिर छोटी सारंगी इसमें- चाहिए, छोटे छोटे हाथ। ये बहुत अब तो बहुत पुरानी है ये, मगर उसको संभाल के रखा हुआ है। जी हाँ, मैंने इस पे ये और सचमुच ये इतनी पुराना बड़ी गज चीज है। हाँ, बहुत। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि ये बजे, क्योंकि उसको काम में तो आते आते नहीं। नहीं है। अब लोगों को कोई छोटा बच्चा आ जाता है तो फिर इसको ठीक करके इसको फिर उसी ठीक को करके शुरू फिर करा उसको देते हैं सिखाते हैं। हम। It's also a part of the heritage, I feel. हाँ? जी, बहुत अच्छा बताया आपने। इसको संभाल के रखा हुआ है साहब। तो इसी बहुत छोटी सारंगी छोटे- पर आपने इस पे शुरू शुरू किया। किया। हाँ। और कोई और बच्चा छोटा आता है तो उसको भी ऐसी सारंगी पे शुरू किया जाता है। जी हाँ, लो भाई, रख दो इसे उठा के। अच्छा तो इस तरीके जी। से इसमें बैठना changes कैसे भी और आती हैं। सारंगी कैसे पकड़ना ये दरअसल आपका- पहले इसमें तो ये भी कुछ सारंगी ऐसी होती थी कि जिसमें ये सिर्फ फेस होता था, हेड नहीं होता था। तार होते थे, सिर्फ 9 स्ट्रिंग होते थे इसमें, स्टील में। जी हाँ, तरफ वगैरह नहीं। तरफ नहीं। सिर्फ 9 जी हाँ। ओनली। तो और 7 यस, ये तो बहुत ही I think this is a very valuable article. You don't come to see such a great antiquity. No. फिर अब आप कैसे पकड़ोगे थोड़ा? ये वो से बजाई जाती है। और ये वो से हॉर्स क्या- हेयर है, ये हाँ, हॉर्स हेयर है horse hair. जी। और This is also traditional. 3 मेन स्ट्रिंग अबाउट 3 main strings are made of gut. या गट स्ट्रिंग And then एंड ये दिस स्ट्रिंग सिंपैथेटिक स्ट्रिंग Sympathetic strings. सिंपैथेटिक स्ट्रिंग। So this is the structure of the sarangi. आगे कर अब दिया how ना। to produce the tone? सुर कैसे निकालेंगे? सुर भी बो से ही निकलता है बस। Tuning of the sarangi is also quite difficult. फर्स्ट ट्यूनिंग Like this. Now, of course, when your pupil or pupils, या when they come, one would like to know which are the etudes or exercises. पलटे वगैरह तो शुरू में बताएंगे, जी पहले तो भाई सुर का ज्ञान तो देना ही है। बिल्कुल। सुर का ज्ञान देना है, उसके बाद पलटे उल्टे शुरू करते हैं। Yeah. अगर आप कहें तो किसी बुला के सुनवाऊं मैं? I think so. थोड़ा सा। Hmm. आओ भाई मतीन, नहीं, तुम कमल आ जाओ। अच्छा Initial पलटे जो पहला सारे गाँव पद नहीं कहते।
the training of lyre or tempo or movement is also simultaneously given. Yeah. अब इसको ही दुगुन में बजाओगे आप. This is the initial in one famous scale, and now in several scales and several such exercises, more and more complicated, are taught. To begin with, शुरू में तो ये बताते हैं. जी. And afterward, After you would like this, to, you like to him palte. to play some Palte. पलटे. Yeah. तो अब एक पलटा आप बताइए कौन सा तो he will play. कोई भी बजा. Very nice. इस टाइप के पलटे होते हैं जिससे इंस्ट्रूमेंट में भी और वोकल में भी वो गाने में भी. सेम. Yes, somebody was asking. अब उसमें कि सारे गा whether रेगा मा गामा पा सारे सारे गा रेगा रेगा मा गामा गामा पा, मतलब इस तरह से लौट पलट उसको एक्सरसाइज. Yes. इसी में से यही ताने बन जाती हैं. जो पलटे होते हैं ये बाद में ऊपर जाके सब ताने बन जाती हैं. बनती सारे गामा रेगा मा पा गामा पा मा पा दा नी पा दा नी सा दा नी पा, मतलब जो भी उसको स्लोप बजाएंगे तो वो पलटे बन जाए. सारे गामा रेगा मा पा गामा पा दा मा पा दा नी सारे गामा रेगा मा पा गामा पा दा मा पा दा नी पा दा नी सा. So ये this वो is the ताने बन जाते हैं. foundation dance. जी. और फिर the entire infinite world of music is created. वो कंपोजिशन निदा पामा करे सुनो. अच्छा निधा पाऊँ. So Savarika sir, one would like to know that you joined All India Radio at a very early age. At what age did you join? I was 15 or 16. 15, 16. Then I was joined radio station. Delhi station. Delhi station 1943. 43. 43. And now, So I From your home retired in to- 1989. So I think you are a unique person who has served the longest yeah. in All India Radio. So you joined All India Radio. And there probably you worked in different units, Tamil orchestra Yeah. and some other. Tamil. So you learned not to write and understand notation in Tamil. Yes, read and write both. Tamil Read and language, write. yes. And also Also of Hindi, course, English, Hindi, Urdu. English, everything. So that was also a foundation for you. And, And afterwards, when I joined Tamil unit of 1943. Gee. So that was the so beginning. 4 years. 4 years you yes, were there. I was there. Now, afterwards, you came to this general studios, and there you started accompanying artists, great artists, Yeah. mediocre artists, younger artists, all types of All types of artists. Yes, classical, So you light got classical and light. light and all, classical, yeah. light classical, everything. But So, before vocalist, I was in orchestra. yes. I would like to know, Yes, yes. when you were in orchestra, you are in All India company Radio. of several students, several instruments. Several instruments. So you were attracted by those instruments, and you tried to handle other instruments also. Yeah, cello, saranda, dilruba, israj, Yes. bow instrument. Board instruments. Bow instrument, yeah. So I think All India Radio was something like a school for him to Tabla, learn yes, everything. yeah. And you learned so much Yeah. from there. मैं हमेशा उसको स्कूल ही समझा. ऐसा समझा. ऐसा समझा. मैं सच्ची बात स्कूल है। में अभी आया हूँ पढ़ने, तो जितना भी पढ़ सके पढ़ अच्छा सके है, उतना सब कुछ पढ़ो। आना चाहिए. ये तो बहुत ही अच्छा हुआ. और फिर बड़े बड़े म्यूजिशियंस. तो दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, बच्चा ही था उस समय. मैं चाहता था ये भी इंस्ट्रूमेंट आए, ये भी है. तो तबला भी मैंने सिखाया यूनिवर्सिटी में जब मैं विजिटिंग प्रोफेसर था 1981, 82.
वहाँ यूनाइटेड 81, स्टेट्स 82 में। यूनाइटेड स्टेट में तो मैं सब सिखाया, तबला, सारंगी, गाना, फ्लूट, सितार, सरोद, सब थोड़ा That थोड़ा way you अपने आप आ really जाता है। became a versatile musician. ऐसा हुआ आपका। जी, और गाना तो आपने वो अपने गाना घर तो से भी बगैर सीखा और चलता ही था। नहीं, सारंगी तो गाना है ही, जी हाँ। सारंगी गाना है और गाना ही गाना है। सीखना भी पड़ता है। हर सारंगिया तो गाना है जरूर। so, but you gained a lot from accompanying great musicians, because the art of accompanying also is not easy. I think it is quite difficult. Huh? Musicians with several traditions and several styles, Accompaniment very difficult. Very difficult, things. according to you. Yes. and you learnt it with great experience. Yeah. Now, मेरे who- ज़माने में, मेरे टाइम में जो भी लोग थे, साथ फैयाज खान साहब, बड़े गुलाम अली खान, अमरनाथ ठाकुर, या जो भी विनायक प्रधान, नारायण व्यास जी, Yeah. जो भी लोग थे, सबके साथ आपने बजाया मैं। संगत करी। और बजाते बजाते एक्सपीरियंस हुआ। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं बहुत छोटा था, तो वो एक आर्टिस्ट आए, उनको अरे ये तो बहुत छोटा है, इसको क्या दे रहा हूँ, उसको मैं हमारे साथ लेकिन फिर उसके बाद मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मुझे मना किया लेने से। वो कहते लिया ही हैं नहीं अभी तो आपको। छोटे नहीं, कहें ये क्या बजाएंगे, ये तो मुझे बहुत फिक्र हुआ। और फिक्र के बाद मैं फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करी। जी हाँ। तो जो आर्टिस्ट एक टाइम में नहीं लेते थे, फिर वो टाइम आया कि वो कहते मांगने थे लगे कि बल्कि हमें साबरी साबरी चाहिए। ऐसा भी हो गया। ऐसा टाइम आया फिर। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ, did it happen something that you were accompanying and somebody reprimanded you, कि नाराज हो गए, भी क्या कर रहे हो, ऐसा भी कभी हुआ? ऐसा हुआ। ऐसे हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बजा रहा था, क्योंकि दरअसल बचपन में और जवानी में ज़्यादा भागता है आदमी, तो बहुत से गाने वाले ऐसे होते हैं, वोकलिस्ट के बहुत तैयार नहीं होते। लेकिन एकम्पनीमेंट का तो ये मतलब है कि उसका जितना गाना है उतना बजाना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमें एक तालीम मिली रेडियो से। जी हाँ। तो मैं बजा रहा था और मैंने दुरुस्त भागना शुरू कर दी। वो जो थे मद्दुरुस्त के थे, गाने गायक कलाकार थे, वो बहुत तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे, मैं तो छोटा ही था, बहुत डांटा। तो कहने लगे, अरे तुम किसके बच्चे हो, तुमने ये नहीं सीखा कि जितना गाना गाया हो उतना ही बजाना हो, जितना गाना गाए उसी लय में बजाओ। मैंने कहा साहब बिल्कुल, मैं आइंदा से तो ये बात याद रखूँगा आपकी। खैर वो बात मुझे मिली कि उससे नाराज होने के बजाय आपने उसको एक सीख के रूप में, मैं सीखा, you took it, इस तरीके से। जी हाँ बिल्कुल, अपनी झोली भरते गए। अच्छा, और फिर सोलो में तो आपकी तालीम और शिक्षा सब थी ही। जी हाँ। और you attained eminence in solo also. About the sarangi, one feels that it's truly a unique instrument, that it is the only instrument which is the nearest to the human voice. So, as an accompanying instrument, sarangi is unique and it's great. But equally great has it got possibilities and potentialities for a full-fledged solo recital. ये भी है ना? बिल्कुल है। पूरे यानी दोनों में, अकम्पनीमेंट में और सोलो में पूरे रीति से जो बजा सके, ऐसा तो अकम्पनीमेंट का तो एक्सपीरियंस होता है बजा बजा के। हाँ। और सीखे में तो सोलो ही सीखता है। जी हाँ। जब तालीम लेता है तो वो सोलो ही सीखता है, अकेला बैठ के सामने, गुरु के सामने बैठ के सीखेगा। तो संगत जो है ये मुश्किल चीज़ है, और वो करते करते ही आती है। हर एक को मुश्किल होती है। जी हाँ। और उसको जब तक वो भी संगत भी सीखेगा नहीं तो वो नहीं आती। अब ये बच्चा बजाता है अभी थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा सुनवाते हैं आपको इसको भी। अब इनको फिर मैं आपको भी तबला बजाओ भैया, आ जाओ भैया। हाँ, फिर मैं आपको ये पूछना चाहती थी, बाद में बताओगे जी आप, जी बिल्कुल, कि विदेशों में जी आपके सारंगी का कैसा ये अख्तर हुसैन साहब हैं, रुतबा तबला बजाएंगे। कौन सा, विच राग आर यू प्रेजेंटिंग? श्री, he is going to
present Shri Rag, श्री राम। an evening melody. Acha, I haven't said that he is the son of Ustad Sabri Khan Sahib, and from childhood he has learnt under him. He is Kamal Sabri. Come, come. गुलफाम आ जाओ इधर, वो छेड़ दो।
everyone would like to appreciate your performance. Short but up to the mark. Khalsa? ठीक. अब he is on his way to advancement and stage पर आने के लिए. Now I would like to ask you, a newcomer who played this Sarengama just now, you have taught him also some rag or something? Would you like him to play something? Yeah. Hmm? Here we have seen You like to sarangi? young man Sarangi or other instrument? on his way. You like sarangi or other instrument? Other instruments. Sabir Khan Sahab has not only trained young persons in sarangi, but also in flute, instruments like flute and vocal music singing. So one would like to hear a little of that also. So, चलो ठीक है. क्या बजाए कौन सा यमन थोड़ी देर के बजाए. He is going to play Yaman. I would like to
that this shows how versatile and generous a guru Ustad Sabri Khan is. In fact, many a time he has been keeping his pupils at his house, and literally in the Gurukul mode he has been training them. आप भी इनके साथ रहते हो क्या? This boy lives with him. ये मेरे पास रहता है, सब इसका खर्चा सब मैं उठाता हूँ। ये हल्द्वानी का रहने वाला है। He belongs वहाँ to से Haldwani. आ गया था तो मेरे पास आया तो फिर And see how he has इसका नाम learned है and धीरज progressed. पांडे। Hmm? इसका नाम धीरज पांडे है। दरअसल बात क्या है, मैं कोई भी मेरे पास आए, जाति कुछ नहीं, इंसान है सब, और मेरे बच्चों की तरह सिखाता हूँ। जैसे मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ वैसे ही वो मेरे बच्चे ही हैं, शागिर्द हैं तो मेरे बच्चे हो जाते हैं, तो मैं उनको वैसे ही सिखाता हूँ। अब खाना पीना नाश्ता रहना सोना सब मेरे पास है इसका। और भी ऐसे आर्टिस्टों को मैंने बहुत सिखाया है कि उनको 3-3 साल रखा, आज वो बड़े आर्टिस्ट हैं। उसका नाम पहले घार सिंह था और अब मासूम ठाकुर है, बहुत अच्छा गाते हैं। यहाँ सीरियल भी बना रहा है, आपने मासूम ठाकुर का नाम सुना होगा। वो सबसे पहले जम्मू से मेरे ही पास भाग के आया था, अकेला, एक जोड़े से, एक कपड़े से, और सब मैंने उसको दिया। और क्योंकि उसको बहुत प्यार था कि मैं सीखना ही चाहता हूँ ज़रूर, गुरुजी कुछ ना कुछ तो मैंने कहा ज़रूर सिखाएंगे जब तू सीखना चाहेगा। तो बड़ा नाम है उसका, वो आजकल बहुत अच्छा गा भी रहे हैं दोनों में। अभी सोनिया भी उसकी मेरी शागिर्द है, वो भी वो तो इस तरीके से तो ऐसे मैं प्यार से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सिखाता हूँ। कोई भी जो भी मेरे परिवार बहुत बड़ा है नहीं। और फॉरेन में भी जो बजाते हैं वो अच्छा बच्चे बजाते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हु आर योर foreigner, your students who have progressed and made a good name? डैनियल एम न्यूमैन, जानते हो? डैनियल न्यूमैन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इंडियन म्यूजिक का, पहले सिएटल में थे, प्रोफेसर थे, फिर अब डीन है लॉस एंजलिस में, आजकल रेगुलर कुरैशी है अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में कनाडा में, और बहुत है, रोजे प्रियांती है पेरिस में है, मतलब किम वुडरफ है सांता रोजा यूनिवर्सिटी में है, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, बहुत, और सब कुछ करते हैं। जो वो ये नहीं कि खाली नाम है, नहीं, जो भी है वो कुछ ज़रूर बजाते होंगे, गाते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो आना। अभी ये बच्ची है, इसको सुनवाएंगे आखिरी में थोड़ी देर में। ये ठुमरी कभी नहीं गा सकती थी, ना गाती थी, मगर लाइट म्यूजिक गाती है, बहुत लाइट क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, होरी, सब सुनवाएंगे आपको। तो मतलब जिसको सिखाया वो कुछ है, ऐसा नहीं खाली नाम के लिए नहीं। अब वो उसके पास कुछ देने को नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमने जब सिखाना ही है तो हर सूरत में संगीत को बांटना है, देना है, दान करना है। किसी को नाम होगा, खुश होंगे, ये भी सब नाम। बस ऐसे बहुत से लोग हैं, अब बहुत अच्छा गा बजा रहे हैं, सर्विसों में लग गए वो। जी हाँ, बाहर भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी हैं, यहाँ भी रेडियो भी स्टाफ में है हमारे। अभी भीम सिंह को क्लाइंट सिखाई थी, भीम सिंह बहुत अच्छा बजाता था, वो उसकी डेथ हो गई। वो स्टाफ में था, वैसे स्टाफ आर्टिस्ट था रेडियो में, गुलाम साहब वगैरह हैं, और नायाब अली है स्टाफ में है, गोरखपुर रेडियो में, मतलब सब अच्छी अच्छी जगहों पे लगे हुए। अभी एक नामधारी है, वो यहाँ मेरे पास रहा कोई 3-4 साल, देवेंद्र क्या नाम है, समिंदर पाल सिंह, पहले कत्था केंद्र में रहा 3 साल, यहाँ मुलाजिम रहा 3-4 साल, अब वो रेडियो स्टेशन जालिंधर में उसको अपॉइंटमेंट मिल गया, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा बजा रहा है। तो वो सदगुरु जी जो हैं उन्होंने उसकी सिफारिश की थी कि हाँ साहब आप इसको बताइए। तो ज़रूर बताएंगे साहब, जो मेरे पास आया है तो ज़रूर सिखाएंगे, सीख के ही जाएगा, सीख के जाएगा। बहुत अच्छा बजा भी रहा है वो। तो काफ़ी लोगों को आपने अपनी विद्या का दान करके और बहुत लोगों को जो भी प्रकाशित किया, और सब कुछ बस संगीत की सेवा है, ये मैं सेवा कर रहा हूँ। जी हाँ, अच्छा है जितनी और भी। एक बात थोड़ी मेरे मन में आ रही है, अब ये सारंगी इतना मनमोहक साज है, such an enchanting instrument that I think when Sabri Khan Sahab went and brought to Paris or somewhere, Paris में, when he gave his performance, the audience was so enchanted
that they wanted वो him बहुत to इंटरेस्टिंग है वो continue. वाकया या Yeah? 1985 85. देयर वाज 24 आवर्स म्यूजिक कॉन्सर्ट था. नॉन स्टॉप प्रोग्राम, उसमें सब बहुत ही सब टॉप म्यूजिशियन थे, हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा, गंगूबाई हंगल और फहीमुद्दीन डागर, बहुत लोग थे क्योंकि 24 आवर्स का था तो बहुत आर्टिस्ट थे। जी हाँ। लेकिन वहाँ सारंगी को बहुत ही पसंद किया गया क्योंकि सबके दो दो आइटम थे, एक सुबह था एक रात को था। लेकिन जब मेरा रात को आइटम हुआ तो फिर पब्लिक ने उठने नहीं दिया, मतलब मुझे। तो उसकी ऑर्गेनाइजर थी वो मेलिना साल्विनी, जो मंडप में प्रोग्राम कराती हैं, अक्सर पेरिस में बहुत प्रोग्राम किए। तो वो पब्लिक जब स्टैंडिंग क्लैप देने लगी, नहीं हम तो कंटिन्यू रखेंगे सर। अब क्योंकि दूसरे आर्टिस्ट भी थे लेकिन पब्लिक डिमांड थी उनका, नहीं हमें तो सारंगी चाहिए, सारंगी और सुनेंगे, सारंगी और सुन। तो फिर उनका नहीं आप ही बजाइए। तो आपने बजाया, मैंने तीसरा आइटम और दिया ज़्यादा, मतलब तो वहाँ शागिर्द भी हुए कुछ लोग, चेलो छोड़ के सारंगी, चेलो वाले सारंगी सीख रहे हैं। वहाँ सारंगी का बहुत शौक हुआ पैदा, क्योंकि सारंगी जैसा हमारा भारतवर्ष का इंस्ट्रूमेंट है वो किसी देश में नहीं है ऐसा इंस्ट्रूमेंट। ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ आप प्ले कर सकते हैं। जी हाँ। और लाइक आपको लगेगा जैसे कोई गाना गा रहा है। इसमें ये खूबी है जी। नो बड़े बड़े अजीब अजीब वाक़यात आते हैं। अगर एक बार याद हो तो अभी सुनाइए, फिर आगे चलेंगे, फिर बताएंगे। बताइए। दरअसल कुछ गायक कलाकार भी बहुत, मैंने संगत भी बहुत की और मैं किसी से लड़ा भी नहीं कभी आज तक, कोई मुझे नहीं कह सकता। एक गायक कलाकार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके साथ अफगानिस्तान में मैं बजा रहा। मेरी एक आदत है कि मैं शुरू से जो जितना गाना उतना बजाना, और जो तान कह के छोड़ी वो फौरन मैं उसको कैच करके उसकी कॉपी कर दी। वो पब्लिक टेस्ट होता है, उसमें पब्लिक को मज़ा आता है। उसमें क्लैप्स होने लगी और जब मुझे 2-4 दफ़े क्लैप्स मिल गई तो जो गायक कलाकार थे वो थोड़ा सा उनको नाराज़गी लगी, भाई ये क्यों इनको। लेकिन मैंने ऐसा देखा, ऐसे गवैये भी थे हुए हैं जैसे मसलन बड़े गुलाम अली खान साहब, ओमनाथ ठाकुर जी, विनायक वगैरह। अरे क्या कहने, बहुत अच्छे, ऐसी तारीफ किया करते थे बैठ के स्टेज पे, क्या कहना। और ऐसे एक आर्टिस्ट भी थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, कि उन्होंने लेके मेरा, जब वो क्लैप्स हो गई 2-4 तो उन्होंने माइक लेके मेरा यूं ऐसे मोड़ दिया। जब मेरी अपनी तरफ को कर लिया, मैं भी कर सकता था, हालांकि उसको मैं टर्न कर सकता था अपनी तरफ को, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं झगड़ा नहीं चाहता, बेकार। उनको नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब पब्लिक में सारंगी तो जा ही नहीं रही, और जब नहीं जा रही तो पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा, और जब मज़ा नहीं आ रहा तो उन्होंने क्लैप्स देना बंद कर दिया। अब वो पिक्चर जैसे देखते हैं ऐसे देख रहे हैं बस कोई मज़ा नहीं आ रहा, और सिर्फ देख रहे हैं, वाह भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपनी उनकी तो ताने सुनाई दे रही है और वो देखा लग रहा है बस। और कुछ उसकी जवाब सवाल तो कुछ मालूम नहीं दे रहा, आ ही नहीं रहा। जब जवाब सवाल नहीं आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या बात है, आप कहने नहीं सब आपने सारंगी तो बंद कर दी, हमें तो सारंगी आई नहीं रही। कहने नहीं, मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही। अब आपको तो आएगी, मैं बैठा ही हूँ तुम्हारे पास, तो मेरी सारंगी की आवाज़ तुम्हें तो आएगी। सर मुझे तो आ रही है, लेकिन पब्लिक को तो पब्लिक करी, हमें तो नहीं आ रही। कहने साहब मुझे तो आ रही है। और बड़े उस्ताद थे वो, मैं क्या कहूँ। खैर जब उन्होंने कहा तो अब वो, क्योंकि जब मज़ा नहीं आया पब्लिक को, तो पब्लिक देख रही थी, तो गाने वालों को भी क्योंकि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा और कोई पब्लिक से कुछ वो नहीं मिल रहा तारीफ, तो उन्होंने जल्दी बंद कर दिया। और जब जल्दी बंद कर दिया तो वो कहने लगे हम आप सोलो सारंगी सुनेंगे। और जब ये कहा तो मैंने कहा साहब मैं सोलो सारंगी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि ये बड़े उस्ताद हैं, मैं इनके ऊपर बैठ कर नहीं बजाऊंगा। बहुत जोर लगाया, मैंने नहीं बजाई। मतलब ये मुझसे होगा नहीं, चाहे और वो माइक भी मैंने अपनी तरफ को नहीं टर्न किया, नहीं वैसे ही रहने दिया। मैंने कोई बात नहीं, अगर ये नहीं चाहते तो हम ये नहीं चाहते कि इनकी नाराज़गी से हम ऐसा ज़बरदस्ती नहीं। खैर मैंने कहा भाई कल सुना सकता हूँ मैं, आज नहीं सुनाऊंगा। दरअसल बादशाह को बहुत पसंद थी सारंगी, ज़ाहिर शाह बादशाह, और वहाँ की पब्लिक भी। यहाँ से तो इंस्ट्रूमेंट जाते रहे, वोकलिस्ट भी यहाँ से सीख के गए वो
मोहम्मद फहीम साहब, जी हाँ। आशिक अली खान साहब हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के थे हमारे। बड़े बड़े उस्ताद लोग जो हुए, तो दूसरे मुल्कों में भी अगर गई तो हमारे यहीं से गया, सारंगी भी गई, गाना गया, क्लासिकल म्यूजिक जी हाँ। अगर कोई गाता है दूसरे फॉरेन कंट्रीज में तो यहीं का है। तो अफगानिस्तान में भी लोग गायक कलाकार हुए तो यहाँ से सीख के गए। बहुत से सारंगी भी थे वहाँ, एक शागिर्द भी हमारा था वहाँ अफगानिस्तान में, उसकी डेथ हो गई। बहुत लोग, अफगानिस्तान बहुत ख़राब हो गया। खैर, तो वहाँ बहुत शौक था क्लासिकल म्यूजिक का भी, तो मैंने बजाई नहीं, और दूसरे दिन फिर मैंने बजाई। मैंने कभी दूसरे दिन बजाऊंगा आज। चलिए, तो साबरी खान साहब, नाउ आई थिंक द ऑडियंस इज वेटिंग फॉर योर ओन परफॉर्मेंस। तो अब आप थोड़ा क्या, कौन सा राग सोच रहे हैं वो बताइए। नाउ आई एम प्लेइंग पूरिया कल्याण। पूरिया कल्याण। थोड़ा आप भी मिला के रखोगे ना? देखो तब बाद में सब फिर साथ में करने का आइडिया है ना, सब साथ में करेंगे आखिर। अभी नहीं, वो आखिर में जब वो इसका हो जाएगा तो, अभी तो आप बजा रहे हो। थोड़ा सा बच्चे को और सुनाएंगे, बच्चे को भी सुनाएंगे अभी आपको। हाँ जी हाँ। वो आपके पहले ही सुनाएंगे क्या? बाद में सुना देंगे, बाद कोई में, बात कोई नहीं। बात नहीं। Tuning of the sarangi is also complicated. Yes. तारों को मिलाना है, लाइट से भी। और नख के यहाँ से बजाना है, ये भी खास चीज इसकी है। इसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। ये भी, ये कुछ सीखने में मालूम पड़ रहा है, टाँव टाँव कर रहा है।